Hey my dear student, again welcome back to Balabali's world, and today we will be develop a very crystal clear idea about the classical pathway of complement system. Now, first of all, we need to understand what actually complement system is, right? So complement system is nothing but it is very special part or special wing or special arm of our immune system, IMMUNE. It is very special part of immune system which augment or enhance the function of antibody, right? Antibody, as well as which also augment or enhance the inflammatory reaction, reaction. That is just one sentence about our beloved complement system. Now you also know very well there are mainly 20 variety of protein that is include under complement system. How many protein, my dear? There are 20 varieties of protein include under the complement system. But one thing you need to know very crystal clear. The main player of complement system, the main champion player of complement system is just complement protein number C1 to C9, right? Complement protein number C1 to C9. They are the main player of complement system, and most of this complement protein is mainly secreted by our master liver, right? Most of this complement protein is synthesized and released by our beloved liver into the bloodstream, right? That is a bloodstream, and inside this bloodstream there is lots of blood cell as well, right? That is blood cell, and after synthesizing, liver secrete this complement protein into the bloodstream. Liver secreted all this complement protein into the bloodstream, and they go through the bloodstream throughout the body and spread throughout the body and function on the target organ or target tissue or target cell, right? That is the main agenda, right? Now यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया बेटा कि the main player of complement system is what? C1 to C9. And again, thanks to our senior researchers, senior scientists, senior doctors, they don't put a very difficult name. They simply call this complement protein just C1, C2, C3, C4, C5 and up to C9. That is, they are the main player, right? So we need to investigate some more point about this C1 to C9, this protein, right? So there is main protein is complement protein number 1, and again complement protein number 2, that is C2, and C3, C4, C5, C6, C7, C8 as well as C9. They are the main player of complement system. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको कुछ मुद्दा का बात याद रखना है. ये जो आपका C1, उसके बाद आपका C6, C7, C8 एज वेल एज C9, ये जो प्रोटीन है ना बेटा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये कभी भी फंक्शन के दौरान स्प्लिट नहीं होता, मतलब टूटता नहीं, ठीक है? ये कभी भी क्लीव्ड नहीं होता, ये पॉइंट आप याद रखना. बट दिस वन, दिस C2, C3, C4 एंड C5, दे आर कॉल्ड प्रो एंजाइम. ठीक है, ये चारों को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रो एंजाइम. प्रो एंजाइम मतलब क्या है? दे आर द inactivated enzyme, and this inactivated enzyme just circulating throughout our body via blood. ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमेशा एक्टिवेट रखने का जरूरत नहीं है. जब
बॉडी में इसका जरूरत होता है तभी एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए प्रो एंजाइम के रूप में सर्कुलेटिंग ब्लड में घूमते रहता है, ठीक है। और प्रो एंजाइम में मेनली कौन कौन है, C2, C3, C4 as well as C5, but C1, C6, C7, C8 and C9 is not proenzyme and they are not cleaved, right। तो ये नॉट क्लिप्ड का मतलब क्या है बेटा, यहां पर देखिए ये जो C2 है, C2 जब प्रो एंजाइम से फंक्शनल एंजाइम होता है एंड एज वेल एज C3, C4 एंड C5 एज वेल, तो ये जब प्रो एंजाइम से फंक्शनल एंजाइम बनता है तो क्या होता है, ये दो पार्ट में क्या होता है बेटा, टूट जाता है, ठीक है। और वो दो पार्ट क्या क्या है, एक तो ये C2 ए पार्ट में टूटता है और C2 बी पार्ट में टूटता है, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट में हमेशा टूट जाता है। तो ये भी क्या होगा बेटा, C3A एंड C3B, ये क्या होगा C4A एंड C4B पार्ट। और ये वाला क्या होगा बताइए, ये जो आपका C5, ये भी क्या होगा C5A एज वेल एज कौन बताइए, C5B पार्ट। तो हमेशा ए और बी पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट यहाँ पर और एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बता दे रहा हूँ कि ये जो बी पार्ट जो टूट के जो बी पार्ट बनेगा, ये बी पार्ट हमेशा क्या होगा बताइए, फंक्शनल पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमेशा यही पार्ट बी पार्ट ही क्या करेगा बताइए, फंक्शन करेगा, ठीक है। और एक मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज नथिंग बट द ऑल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ C3, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एम क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एम ए है कि ये जो सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर आता है, इसका टारगेट क्या है बताइए, टारगेट इज दैट द एक्टिवेशन ऑफ दिस वेरी वेरी यूनिक प्रोटीन, that is all about the activation of C3, right, all about the activation of C3, that means C3 is actually called the hero of complement system। इसको एक्टिवेट करना ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एम है। क्यों इसको एक्टिवेट करना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एम है, ये आगे हम क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब देखिए और कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन आपको और छुड़ा के देता हूँ। मैंने आपको बताया कि द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आर मेनली secreted, synthesized and secreted by liver, and the liver cell is called hepatocyte, mainly synthesized and secreted by what, hepatocyte, right। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर and liver cell is called hepatocyte, that's mean maximum complement protein is secreted by hepatocyte as well as macrophage, macrophage and macrophage, right। And macrophage also represent as like that emphage, right। And not only hepatocyte and macrophage, there is some another cell which is also responsible for secretion of this complement protein, that is called dendritic cell, and complement protein number 1, right, complement protein number 1 is mainly synthesized and secreted by GIT mucosa cell, राइट। ये याद रखना माय डियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ gastrointestinal tract, especially mucosa cell of gastrointestinal tract is mainly responsible for secretion, synthesis and releasing of complement protein number 1, that is C1, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना। और आगे देखिए ये अपना बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कब एक्टिवेटेड होता है कि बॉडी में अगर कोई मान लो कि वायरस या बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, मान लो कि ये कोई खराब बैक्टीरिया है, राइट, ये बहुत ही एक खराब क्या है बताइए, बैक्टीरिया है, ठीक। ये देखिए बहुत ही मतलब
घटिया बैक्टीरिया है, और ये जब बॉडी में आ गया तो क्या होगा, अपना बॉडी में डिजीज का कॉज होगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जब क्या होता है, एंटीबॉडी सेंस करता है। ठीक है, एंटीबॉडी आके यहाँ पर लग जाता है। एंटीबॉडी जब बैक्टीरिया को सेंस करता है तब एंटीबॉडी का जो सी फ्रैगमेंट, एफसी फ्रैगमेंट, ठीक है, ये वाला एंटीबॉडी का, जब जस्ट मैं सिंपली देखा रहा हूँ, आगे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। एफसी पोर्शन मीन फ्रैगमेंट फॉर क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी इज जस्ट एक्टिवेटेड फॉर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है जब बॉडी में क्या होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाता है तो क्या होता है, कौन सा एंटीबॉडी के थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। ठीक, तो ये मेन जो एंटीबॉडी है अपना बॉडी में, उसमें से IgM एंड IgG, राइट, ये भी एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड इम्यूनोग्लोबुलिन G इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि अपना बॉडी में मेनली पांच क्या रहता है बताइए, 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी इज फाउंड इन आवर बॉडी। और इसको याद रखने का ट्रिक कैसा है बेटा, आप कैसे याद रखिए, GAMED, गेम्ड, ये तो काफी आसानी से आप याद रख सकते हैं। गेम्ड का इनर मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, ठीक है, उसके बाद IG, ये देखिए IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgE एज वेल एज IgD। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस एंड एंटीबॉडी जो है, 5 क्लास का एंटीबॉडी जो अपना बॉडी में, हर एक बॉडी में क्या होता है, पाए जाते हैं। उसमें से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कौन करता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करता है एक्चुअली ये जो IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन M। ठीक है, ये मेन फंक्शन प्ले करता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो इतना याद रखना। आगे हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से एक्टिवेशन होता है और हाउ द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज वर्क इन आवर बॉडी, राइट। तो बेटा अब यहां पर देख लेते हैं किस तरह से अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो मानिए कि ये एक बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया बड़ा ही हार्मफुल, क्या है बताइए, एक बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया इज वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, ये वेरी वेरी हैप्पी क्यों है बताइए, ये हैप्पी इसलिए है कि अपना बॉडी के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, आके ये क्या करेगा, अपना सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करके, सेलुलर मतलब मशीनरी को यूज़ करके ये क्या करेगा, अभी सर्वाइव करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपना बॉडी में इसका नेस्ट परमानेंटली तैयार करेगा। तो ये है एक बैक्टीरिया जो अपना बॉडी में आ चुका है। बट अपना बॉडी में जब भी बैक्टीरिया आता है, और दूसरा बात, बैक्टीरिया के ऊपर कुछ स्पेशलाइज क्या होता है बताइए, प्रोटीन हुआ करता है, स्पेशलाइज प्रोटीन, कुछ स्पेशलाइज क्या होता है, लिपिड भी हुआ करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल एंटीजन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, थ्रू आउट द बैक्टीरियल बॉडी देयर इज प्रेजेंस लॉट्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। ठीक है, और यू मे कॉल इट वायरल प्रोटीन। ठीक है, वायरस भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से कुछ स्पेशलाइज लिपिड प्रोटीन बैक्टीरिया के बॉडी में मिलता है, जिसको एक्चुअली क्या बोलते बताइए, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल एंटीजन। ठीक, ये मैंने यहाँ पर जस्ट कुछ बैक्टीरियल एंटीजन मैं यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे बैक्टीरियल एंटीजन। राइट, यहाँ पर लिख देता हूँ बैक्टीरियल एंटीजन, एंटीजन। ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि एंटीजन के खिलाफ अपना बॉडी का जो स्पेशल वेपन, स्पेशल मतलब जो मॉलिक्यूलर वेपन, वो एक्टिवेट होता है, जिसका नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है बेटा, एंटीबॉडी, वो एक्टिवेटेड होता है। तो मानिए कि ये अपना बॉडी का प्लाज्मा सेल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल जब सेंस करेगा कि हाँ बैक्टीरिया आया, तो प्लाज्मा सेल इज स्टार्ट रिलीजिंग
plasma cell is start releasing the Y-shaped molecular weapon that is called antibody। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या करेगा, स्पेशल वाई शेपेड मॉलिकुलर वेपन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, जिसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एंटीबॉडी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटीबॉडी, ये रिलीज करना स्टार्ट करेगा। और जब भी ये बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा, अपना बॉडी का जो स्पेशलाइज ऑर्गेन, ठीक है, जैसे कि मैं बताया था ये लीवर, उसके बाद एक कौन है बताइए, ये हो गया आपका मैक्रोफेज, और ये हो गया मानिए कि आपका डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, ये सब सेल क्या कर दिया बताइए, दे स्टार्ट रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे ऑल ऑफ देम स्टार्ट रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करने लगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करने लगा बताइए, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट करने लगा, कहाँ पर बताइए, आपका ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज करने लगा। और ये अल्टीमेटली किसको टारगेट करेगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बताइए, ये बैक्टीरिया को आके टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये सभी के वजह से क्या हुआ, अब देखिए ब्लड में अभी पहले अपना बॉडी में क्या आया, बैक्टीरिया आया, और बैक्टीरिया सेंस करके प्लाज्मा सेल क्या रिलीज कर दिया, स्पेशल मॉलिकुलर वेपन। ठीक है, विच इज फाइट अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, वायरस एंड एनी काइंड्स ऑफ पैथोजन, राइट। और ये एंटीबॉडी तो रिलीज हुआ ही, उसके साथ साथ और भी एक स्पेशल आर्म इम्यून सिस्टम का, और भी एक स्पेशल हैंड, और भी एक स्पेशल विंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज रिलीज इनटू द ब्लड बाय लिवर सेल, दैट इज हेपाटोसाइट, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल एज वेल एज जीआईटी म्यूकोजा, जीआईटी म्यूकोजा मीन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल। तो ये प्रोटीन घूम फिर के कहाँ पर आएगा, ये बैक्टीरिया के पास आएगा। और देखिए ये जो आपका यहाँ पर बैक्टीरियल एंटीजन जो मैंने यहाँ पर थ्रू आउट द सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ये एंटीजन के साथ आके बाइंड कौन होता है बताइए, एंटीजन के साथ आके बाइंड एक्चुअली हो जाता है कौन बताइए, यहाँ पर आके बाइंड होता है ये आपका वाई शेपेड जो प्रोटीन है एंटीबॉडी, ये आके क्या होता है बताइए, यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, जस्ट मैं सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ बेटा यहाँ पर तो ये आप उम्मीद करेंगे, राइट। एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे, राइट। राइट, तो ये एंटीबॉडी आके कहाँ पर बाइंड हो गया बताइए, ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी आके बैक्टीरियल जो एंटीजन है उसके साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका एंटीबॉडी जब भी बैक्टीरियल एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, टाइटली ये जब फिट हो जाएगा, ये जब टाइटली बाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो एंटीबॉडी के ऊपर क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट। क्या रहता है एंटीबॉडी के पास बताइए, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट रहता है। तो यहाँ पर ये जो एफसी फ्रैगमेंट है, एफसी फ्रैगमेंट में क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट के पास जब कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट एक्टिवेट हो जाता है एंटीबॉडी के ऊपर, तब क्या होता है, यहाँ पर ये मैं हटा के ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। राइट, तो मुद्दा बात क्या हुआ बेटा कि बॉडी में बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन है जो हमारा बॉडी के लिए, हमारा सेल के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो उसको सेंस करके क्या हुआ, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी रिलीज किया, और शरीर में जो जो सेल क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिलीज करता है, वो सारा रिलीज कर दिया। तो जब भी ये एंटीबॉडी आके किसके साथ बाइंड हुआ बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सही से ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी आके किसके साथ बाइंड हो गया बताइए, एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। तो एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी बाइंड हो गया, तो एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन
मीन फ्रैगमेंट फॉर क्रिस्टलाइजेबल मीन जो लॉन्ग पार्ट है यहाँ पर क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट पहले क्या रहता है, अवेलेबल नहीं रहता जब ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, बट जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है तो क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये जगह पे आके एक्चुअली क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जगह पे आके बाइंड हो गया। अभी कौन बताइए, अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये जगह पे आके बाइंड हो गया। तो आपको मैंने ये भी बात बताया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ द मेन प्लेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एक्चुअली C1 to C9। तो यहाँ पर सबसे पहले बाइंड होता है कौन बताइए, C1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 एंड C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। कितना पार्ट से बेटा, 3 पार्ट से बना हुआ रहता है, QRS पार्ट। ठीक है, तो मेनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कौन सा पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्ट करता है बताइए, ये कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करा बताइए, ये होता है आपका Q पार्ट ऑफ C1 दैट इज इंटरेक्ट विथ कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट दैट इज प्रेजेंट ऑन FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1। जब ये क्या हो गया बताइए, अभी एक्टिवेटेड हो गया। ठीक, अब जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 एक्टिवेटेड हुआ तो ये क्या करता है, एक स्पेशलाइज एरिया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 के ऊपर एक बहुत ही स्पेशलाइज एरिया ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है फॉर बाइंडिंग ऑफ अनदर प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक, तो ये कौन सा प्रोटीन यहाँ पर आके बाइंड होता है बताइए, यहाँ पर आके एग्जैक्टली यहाँ पर बाइंड होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C4। कौन बाइंड होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C4 यहाँ पर आके बाइंड होता है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियसली बताया था कि C4, C5, C3 and C2 is proenzyme and when they activated they split into C1, C2A as well as C2B। यहाँ से कब तक ऐसे ये होता है, स्प्लिट होता है बताइए, C2 to C5 तक इस तरह से मतलब क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली मानो कि ये कौन है बताइए, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 4 मीन C4। ठीक है, ये हो गया C4। तो C4 का 2 पार्ट है, C4A और एक पार्ट है C4B। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो CA पार्ट जो है ये क्या होता है, यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो CA जो पार्ट है ये क्या हुआ, हट गया यहाँ से। और अभी एक्टिवेटेड पार्ट कौन है, C4B इज नाउ एक्टिवेटेड पार्ट। राइट, तो C4B यहाँ पर बाइंड हो गया, किसके साथ बताइए, ये C1 के साथ ये C4B बाइंड हो गया। अब C4B जब बाइंड हुआ तो ये खास करके यहाँ पर फिर से क्या किया, एक और स्पेशलाइज एरिया C4 के ऊपर क्या किया, इन्होंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये एरिया के साथ आके घुल मिल जाता है, बाइंड हो जाता है एक और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, एक और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पर आके क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जिसका नाम एक्चुअली C2B। ठीक है, तो C2 की 2 जो है इसका भी कितना पार्ट से बनता है, 2 पार्ट से, C2A एज वेल एज C2B। तो जब ये एक्टिवेटेड हुआ तो ये क्या है, C2A पार्ट क्या हो गया बताइए, is go away and the remaining activated part is called what, C2B। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट है C4B as well as C2B that is act as C3 convertase। ये क्या, कौन सा, मतलब किस तरह से काम करता है बताइए, दिस C2B as well as C4B act as C3 convertase, TASE। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हीरो ऑफ आवर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एक्चुअली C3। राइट, दैट इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ C3। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके C4B एज वेल एज C2B ये दोनों मिलके क्या करता है, C3 को एक्टिवेट करता है। तो C3 को जब एक्टिवेट करता है तो C3 इज स्प्लिट इनटू C3A एज वेल एज C3B। ठीक है, तो यहाँ पर ये C2B के ऊपर एक स्पेशल एरिया ओपन होता है,
इसके ऊपर आके कौन बाइंड होता है बताइए, इसके ऊपर आके बाइंड होता है आपका C3B बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो गया आपका कौन बताइए, C3B अभी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब ये तीनों मिला के कौन कौन, C4V, C2V एज वेल एज C3V, दिस थ्री इज टुगेदर कॉल्ड C5 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज, VRTASE, C5 कन्वर्टेज। मतलब ये तीनों मिला के अभी किसको एक्टिवेट करेगा बताइए, तीनों मिला के एक्टिवेट करेगा C5 को, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि C5 हैव also two parts, C5A as well as C5B, राइट। तो मान लो कि ये C5 है, तो C5B जो है ये क्या रहेगा, एक्टिवेटेड पार्ट रहेगा, और C5A जो है वो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स से हट जाएगा, तो ये एक्टिवेटेड पार्ट ऑफ C5, ठीक है। तो C5 फर्दर क्या करेगा, C5 फर्दर एक्टिवेट C6, राइट। C5 फर्दर एक्टिवेट आपका C6, और अब जानते C6 इज नॉट स्प्लिटेबल एंड नॉट क्लीवेबल, ठीक है। फर्दर क्या होता है, ये C6 अगेन एक्टिवेट C7 and C7 again activate C8 and finally C8 एक्टिवेट, C8 जो है ये एक्टिवेट करता है किसको बताइए, C9 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिकल पाथवे का काम करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर और एक MCQ आपके लिए, यहाँ से ये जो C5B टू C9 यहाँ तक ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना, ठीक है, इसको एक्चुअली टोटल कुल मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक, MAC। मैक मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैक मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये C5B, C6, C7, C8 एंड C9 मिलके एक्चुअली क्या बनाता है, यहाँ पर एक्चुअली इस तरह का मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है, जबकि आपको समझ में आए। इस तरह का क्या बनाता है बेटा, बनाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ रहता है। कौन सा प्रोटीन से बना हुआ रहेगा ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बताइए। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज सिंपली मेड अप ऑफ C5B, C6, C7, C8 एज वेल एज C9, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मिल के क्या बनाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इस तरह का चैनल लाइक स्ट्रक्चर। तो मानिए कि ये हो गया आपका C5B, ये हो गया C6, ये हो गया C7, ये हो गया C8, ठीक है। और इस तरह से घूम के फर्दर रहेगा, ये C8 अगर हुआ तो ये C5, C4 सॉरी ये C5B, ये हो गया C6, C7, C8, इस तरह से रहेगा। और बीच में यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इसको सील कर देगा कौन बताइए, प्रोटीन को सील कर देगा C9, इस तरह से क्या करेगा, सील करके इस तरह से मतलब चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसका नाम क्या है, मैक। क्या नाम है बेटा, मैक स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये जाके बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे इस तरह से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे इस तरह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और जब इस तरह से बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिस बैक्टीरियल सेलुलर कंटेंट स्टार्ट लीकिंग आउट, ठीक है। सेलुलर कंटेंट जो है, दिस सेलुलर कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया इज जस्ट स्टार्ट लीकिंग आउट। अब क्या है, इसका सेलुलर कंटेंट अगर लीकिंग आउट होना स्टार्ट हुआ तो क्या ये सेल सर्वाइव कर सकता है विदाउट इट्स साइटोप्लाज्म और विदाउट इट
प्रोटोप्लाज्म ये सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये श्रिंकन होके ये मर जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा अभी तमाम। ठीक है, ये तो अभी दिस बैक्टीरिया इज नो लॉन्गर स्माइलिंग, नाउ दिस बैक्टीरिया, नाउ द टाइम फॉर weeping this bacteria, right? Because this bacteria now no longer functional, right? Now this bacteria no longer functional due to the function of membrane attack complex। और membrane attack complex कौन कौन बनाता है? C5b, C6, C7, C8 एंड C9। और कौन किसको एक्टिवेट करा? पहले एंटीबॉडी का कौन सा पोर्शन में बताइए? एफसी पोर्शन में जब एंटीबॉडी बाइंड हुआ बैक्टीरियल एंटीजन से, तो एफसी पोर्शन का मतलब कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग लूप क्या हुआ? ओपन हुआ, वहां पर आके बाइंड हुआ कौन बताइए? C1 मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1 का 3 पार्ट है QRS, तो Q पार्ट जाके यहाँ पर क्या हुआ? बाइंड हुआ कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट के साथ। तो जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 प्रोटीन नंबर 1 बाइंड हुआ, तो एक स्पेशल एरिया ओपन हुआ फॉर बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C4। तो C4 दो पार्ट से बना हुआ रहेगा, C4A एंड C4B। तो C4A will go away and the remaining activated part is called C4B। ठीक है, और C4B give the access to activation of C2B। हाँ, तो C2B क्या है? दो प्रोटीन से बनता है, एक है होता है C2A go away and the remaining activated part is C2B। ठीक है, तो ये C4B and C2B is together called C3 convertase। they convert C3 complement protein into C3B and C3A part is go away। तो ये तीनों मिलके C4B, C2B and C3B together called C5 convertase। तो ये C5 को एक्टिवेट करता है and C5 then simultaneously activates C6 and then C7, C8 as well as C9 and together this C5B, C6, C7, C8 and C9 is together called membrane attack complex, just a channel like structure। and simultaneously this channel like structure membrane attack complex attack the membrane of bacteria and just for this channel, for this membrane attack complex, this cellular content, this bacterial cellular content start leaking out and by the shrinking of this bacteria and the death is occur, the killing is occur, KILLING, killing of bacteria is occur, right? That is the whole peaceful idea of complement system। और कुछ आइडिया है जो मैं आपको डेवलप करके देने वाला हूँ। हाँ तो बेटा और कुछ बेसिक आइडिया आपको डेवलप करके देना चाहिए, जैसे कि ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका बना रहा हूँ बेटा? वाई शेपेड, दैट इज वाई शेपेड एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी के पास क्या होता है? ये जो फ्रैगमेंट है नीचे का, ये जो फ्रैगमेंट है यहाँ पर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट होता है, इसको बोलते हैं एफसी फ्रैगमेंट, एफसी फ्रैगमेंट, राइट? fragment of antibody। so complement binding site is present on the Fc portion of antibody। तो क्या होता है? ये एंटीबॉडी के पास अभी कोई भी एंटीजन नहीं है, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल एंटीजन हो। तो क्या होता है? ये जब भी क्या होगा, ये जगह पे एंटीजन बाइंडिंग साइट पे आके यहाँ पर जब भी कोई एंटीजन बाइंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये एंटीजन बाइंडिंग हो गया, एंटीजन इज शॉर्टली कॉल्ड AG एंड एंटीबॉडी इज शॉर्टली कॉल्ड AB, राइट? एंटीबॉडी के पास जब एंटीजन बाइंड हो गया तो क्या हो गया? ये जो FC पोर्शन में जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट था ये पहले अनअवेलेबल था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए। अब क्या हो जाएगा? ये साइट अभी एक्टिवेट होके यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाएगा एंड मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा? एक्सेसिबल, मतलब हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई एंटीजन बाइंड नहीं होगा मतलब बॉडी से, तब तक एक कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट क्या रहेगा? अनअवेलेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C2, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर C4 as well as complement protein number C5। ठीक है, they have all these
proenzyme have two part, that is a apple part mean what, A part as well as a B part, ठीक है। ये हो गया आपका A पार्ट, ठीक, ये हो गया आपका A पार्ट मीन एप्पल पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ये हो गया आपका ये पार्ट, ये पार्ट, राइट। जस्ट मैं फानी बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो गया C2A और ये हो गया C2B, ये हो गया फिर से C3A, ये हो गया C3B, ये हो गया C4A, ये हो गया C4B, ये हो गया C5A, ये हो गया C5B, ठीक है। तो ये जब एक साथ रहता है तो क्या होता है, when they are together then this complement protein become inactivated, ठीक है। ये क्या है अभी, इनएक्टिवेटेड प्रोएंजाइम, ठीक, ये सारा क्या है, इनएक्टिवेटेड प्रोएंजाइम। बट व्हेन दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज स्प्लिट विथ ईच अदर, ठीक है, जब ये पार्ट क्या होगा, हमेशा ये पार्ट और बी पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये जब अलग हो जाएगा तो क्या होगा, ये हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका C2B, ठीक है, C2B नाउ एक्टिवेटेड, और ये C2A से अलग हो चुका है, ठीक है। जब C2A से अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रियली एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, ये भी एक्टिवेटेड हो गया। ये कौन हो गया बताइए, ये हो गया आपका C3B, ये भी एक्टिवेटेड हो गया क्योंकि ये पार्ट से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, ठीक है। तो ये कौन हो गया, C4B, और ये भी अलग हो गया और एक्टिवेटेड भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका C5B। तो ये B पार्ट जो है इट इज द एक्चुअली एक्टिवेटेड पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड दे आर कॉल्ड प्रोएंजाइम, ठीक। अब ये स्प्लिट होने के बाद इसको अभी हम प्रोएंजाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड हो चुका है। जब ये एक साथ रहेगा तब इसको प्रोएंजाइम बोलेंगे। और व्हाट्स अबाउट C1, C6, C7, C8 एंड C9, दे आर नॉट प्रोएंजाइम एंड दे आर नॉट क्लीवेबल। वो कभी भी क्या होता है, क्लीव नहीं होता, ऐसा स्प्लिट नहीं होता। अब देखिए कुछ और बातें आपको बताना पड़ेगा। वो बात क्या है बेटा कि एक स्टेटमेंट मैं आपके लिए बता दे रहा हूं कि न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज have the receptor for binding with the C3B complement protein। मैंने क्या बताया बेटा यहाँ पर कि अपना बॉडी में आप जानते हैं कि एक मतलब फैगोसाइटिक सेल रहता है एंड दिस फैगोसाइटिक सेल हैव मल्टीलोबेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। मल्टीलोबेटेड न्यूक्लियस कॉन्टिनिंग एक क्या होता है, अपना बॉडी में सेल होता है। आप जानते हैं मल्टीलोबेटेड न्यूक्लियस किसका रहता है, ये रहता है न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल, ठीक है। एंड अगेन न्यूट्रोफिल इज फैगोसाइटिक सेल। और एक सेल है अपना बॉडी में जिसका नाम क्या है बताइए, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मैक्रो मीन बिग एंड फेज मीन ईटर, ठीक है। मतलब मैक्रोफेज क्या है, बिग ईटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज इज द फैगोसाइटिक सेल। तो बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो ये सेल न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज इज गोइंग टू फैगोसाइटोसिस एंड किल एंड एनगल्फ देम, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है तो मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल एनगल्फ द बैक्टीरिया वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली क्या करता है ये, मतलब बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है, मतलब एनगल्फ करता है, ठीक है। और क्या है, न्यूट्रोफिल और आपका मैक्रोफेज के ऊपर क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ऐसा रिसेप्टर होता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रिसेप्टर होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रिसेप्टर न्यूट्रोफिल के ऊपर है, ये रिसेप्टर का नाम है C3B रिसेप्टर। क्या नाम है बताइए, ये C3B रिसेप्टर, ये भी, और ये भी क्या है बताइए, C3B रिसेप्टर। एंड C3B रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये मान लो कि एक बैक्टीरिया, ठीक,
अब ये बैक्टीरिया क्या है, अपना बॉडी में जब भी आया तो आके इसके ऊपर, इसका बैक्टीरियल एंटीजन के ऊपर कौन बाइंड हुआ बताइए, एंटीबॉडी बाइंड हुआ। तो एंटीबॉडी जब भी बाइंड हुआ तो इसका ये जगह पे एफसी पोर्शन में कौन एक्टिवेटेड हो गया, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट के साथ कौन एक्टिवेट हुआ, C1। C1 के बाद यहाँ पर एक्टिवेटेड हुआ C4b। C4b के साथ एक्टिवेटेड हुआ कौन बताइए, यहाँ पर एक्टिवेटेड हुआ C2b। और C2b के बाद यहाँ पर एक्टिवेटेड कौन हुआ बताइए, C2b के बाद यहाँ पर एक्टिवेटेड हुआ C3b। ठीक है, तो C3b के साथ, C3b के एक रिसेप्टर है किसके पास बताइए, बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर किसके पास है, न्यूट्रोफिल के पास है। देखिए ठीक है, अब देखिए ए साइड में क्या हो गया, ए साइड से बैक्टीरिया को कैच कौन कर लिया, एंटीबॉडी, और ए साइड से न्यूट्रोफिल कैच कर लिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया को मतलब जाने का कोई जगह है क्या, ये अभी क्या करेगा, इजीली न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा। एज वेल एज इस तरह से क्या होता है, मैक्रोफेज के ऊपर भी क्या होता है, C3b का बाइंडिंग का रिसेप्टर होता है। तो मानिए कि ये C3b और इसके साथ बाइंड होके कौन है बताइए, C2b, इसके साथ बाइंड होके कौन है बताइए, इसके साथ बाइंड होके C4b, और इसके साथ बाइंड होके कौन है, C1, और C1 के साथ बाइंड होके कौन है यहाँ पर एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ यहाँ पर बाइंड होके कौन है बताइए, ये है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अभी क्या हो गया, कैच कर लिया। ठीक, और बैक्टीरिया रो रहा है, अब ये बैक्टीरिया को सीधा क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा कौन, आपका मैक्रोफेज। तो अपना बॉडी क्या रहता है, सेव रहता है। तो ये जो प्रोसेस आपको मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं कौन सा बताइए, क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए क्या जरूरत है बताइए, की क्या है, मतलब इसका ओपनिंग का की क्या है, की क्या है बताइए, इट इज एक्चुअली द एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब ये जो क्लासिकल पाथवे है दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड, मेडिएटेड। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना कि लेक्चर आपको कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड जस्ट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट इज ऑल्टरनेट पाथवे एज वेल एज लेक्टिन पाथवे। बाय बच्चों।